And to him was given the key of the bottomless pit. And he opened the bottomless pit. And there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace. And the sun and the air were darkened, by reason of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth. And unto them was given power, as the scorpions of the earth have power. And it was commanded them, that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree. But only those men, which had not the seal of God in their foreheads. And to them it was given, that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months. And their torment was as the torment of a scorpion, when he striketh a man. And in those days, men shall seek death, and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. And the shapes of the locusts were like unto horses, prepared unto battle. And on their heads were as it were crowns like gold. And their faces were as the faces of men. And they had hair as the hair of women. And their teeth were as the teeth of lions. And they had breastplates, as it were breastplates of iron. And the sound of their wings was as the sound of chariots, of many horses running to battle. And they had tails like unto scorpions, and there were stings in their tails. And their power was to hurt men 5 months. And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name, Apollyon. One woe is past, and behold, there come 2 woes more hereafter. And the 6th angel sounded. And I heard a voice from the 4 horns of the golden altar, which is before God, saying to the 6th angel, which had the trumpet, Loose the 4 angels, which are bound in the great river, Euphrates. And the 4 angels were loosed, which were prepared for an hour, and a day, and a month, and a year, for to slay the 3rd part of men. And the number of the army of the horsemen were 200,000. And I heard the number of them. And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them, having breastplates of fire, and of jacinth, and brimstone. And the heads of the horses were as the heads of lions. And out of their mouths issued fire, and smoke, and brimstone. By these 3 was the 3rd part of men killed, by the fire, and by the smoke, and by the brimstone, which issued out of their mouths. For their power is in their mouth, and in their tails. For their tails were like unto serpents, and had heads, and with them they do hurt. And the rest of the men, which were not killed by these plagues, yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils, and idols of gold, and silver, and brass, and stone, and of wood, which neither can see, nor hear, nor walk. Neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts. सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टीटियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बीचों की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है।
उन्हें पर उन्हें उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी कि जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनमें से भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घड़ों जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुतों से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंक से, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में ही थी। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुल्लोयन है। यहाँ बाइबल में परमेश्वर के वचन में 2 भाग हम देख सकता है। एक भाग जो बिच्छू के जैसा एक प्राणी, और दूसरा भाग जो सिंह के जैसा, और घोड़ा के ऊपर जो घोड़ा होता है वो आग के साथ रहता है, सिंहासन का रहता है, उसको कई प्रकार का जो चीज लिखा गया है, उसके ऊपर जो मनुष्य बैठ के लोगों को न्याय करेगा, लोगों को मार डालेगा। ये 2 चीज हम देखेंगे। होने वाला चीज में, जो आने वाला दिन में जो कुछ होता है उसके बारे में जो प्रकटीकरण में परमेश्वर ने एकदम क्लियर लिखा है। हमने देखा पृथ्वी खत्म हो जाता है, समुद्र खत्म हो जाता है, नदी खत्म हो जाता है, सूर्य चंद्र एकदम अंधकार हो जाता है। ये अंधकार होने के टाइम में मनुष्य का जीवन कैसा होगा, वहां हम पहले देखा 3 भाग, 2 भाग, 1 भाग, लेकिन और कुछ भाग भी रहेगा। मतलब ये भाग है, हम देख सकते हैं परमेश्वर और भी कुछ लोगों को बचाना चाहता है इतना दुष्काल में भी। डहो गळला तेव्हा त्यातून मोठ्या भट्टीच्या धुरासारखा धूर बाहेर येऊन वर चढला, आणि त्या डोहातल्या धुराने सूर्य व अंतराळ ही अंधकारमय झाली. त्या धुरातून पृथ्वीवर उतरले, त्यास पृथ्वीवरील विंचवासारखी शक्ती देण्यात आली. ठीक, यहाँ हम देख सकता है एक प्रकार का एक जीवी आया है। वो जीवी स्वर्ग से उतरा हुआ, नहीं तो ऊपर से उतरा हुआ, आकाश से गिरा हुआ, पृथ्वी पर गिरा हुआ एक तारा। बाइबल ग्रंथ में परमेश्वर के वचन में जो गिरा हुआ तारा एक ही है। गिरा हुआ तारा कौन है? शैतान, लूसीफर। गिरा हुआ तारा सिर्फ शैतानी है। जो उन्होंने क्या किया था, आकाश को छोड़ के पृथ्वी पर उन्होंने आ गया। जब जमीन के ऊपर आ गया था, जो जमीन पे गिर गया, वो इंसान को परमेश्वर ने अधिकार दिया। क्या अधिकार? पाताल लोक, मतलब अंधकार का लोक, मतलब नरक का एक जगह में रहता है, वो जगह को चाबी दिया। वो चाबी ये इंसान लेके जाके, शैतान लूसीफर लेके जाके वो खोलना दिया। जब खोलने के बाद में वहां से काला काला हवा निकलने लगा, हवा निकलने लगा। क्यों काला का हवा निकला था? कारण वो भी है, कारण उसका भी है। क्या कारण था? हम देख सकता है उसका स्थिति में, भयंकर परिस्थिति में हम सुन भी सकता है। वो वहां से जो हवा निकला था, वो हवा के वजह से सूर्य चंद्र पूरा पृथ्वी, सूर्य चंद्र पृथ्वी पूरा अंधकार हो गया।
अंधकार हो गया। जो यहाँ इसका मतलब है, हमने देखा था वहां का परिस्थितियों को, वहां का जो स्थितियों को हमने देखा, सोचा भी, लेकिन दुनिया का पूरा चीज को एक बदलावट हो जाता है, एक परिस्थिति हो जाता है। और एक बार पढ़ लीजिए कोई भी एक जन, पहले तिमोथी उसका 1 अध्याय 1 पहले तिमोथी 4 अध्याय हम देख सकता है। पहले तिमोथी में 4 अध्याय में पहले 2 वचन से लेकर हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कौन सा चीज। और उसके साथ साथ एक बार ये बाग में हम देख सकता है वो जीवी कैसा है, वो जीवी कैसी प्रकार का जीवी, उसका अवतार भी हम एक बार देख सकता है। तो ये 7 प्रकार का जो मुद्दा देखो कैसा है। बिच्छू, बिच्छू जब लग जाएगा तो बहुत दुख लगता है। बिच्छू किसी को भी लग जाएगा तो 5 दिन नहीं तो 2 दिन 3 दिन मृत्यु के जैसा लगता है। ये इंसान सिंहासन का उनका चेहरा है, उनका दांत है, और उनका चेहरा ऐसा है कि मनुष्य के जैसा, उसके ऊपर किरीट है, और वो एक महिला के जैसा उनका बाल है। और उसके बाद में ये बाग में हम देख सकता है साइड में वो बिच्छू के जैसा वो लोगों को मार डालने के लिए चीज है। उसका पूरा अवतार एकदम, उसका अवतार है बहुत खतरनाक चीज है। सो ये अवतार में ये जानवर है पृथ्वी के ऊपर आया। इसका एक राजा भी है, वो राजा का नाम है लूसीफर। शैतान ने ये लोगों को पाताल लोक से, अंधकार लोक से निकाला। बहुत लोग आ गया, बहुत लोग आ गए, इसलिए आ गए कि दूसरों को तकलीफ देना, लोगों को कष्ट देना, बहुत लोगों को मनुष्य को दुख देना, ये चीज के बारे में ये लोग बाहर आया। जब ये लोग आए थे शैतान का संतान आए थे, शैतान का संतान ये लोग है भूत, ये लोग है दुष्ट आत्मा, ये लोग है गंदा आत्मा, ये लोग है जो लोगों को गलत रीति से सिखा हुआ भूत का आत्मा, गलत रास्ता पे ले जाने वाला आत्मा, और लोगों को तकलीफ दिया हुआ आत्मा। ये आत्मा हम कहाँ देख सकता है? ये पढ़ लीजिए कोई भी एक जन, उसके बारे में हमको अच्छे से जान सकता है। पहले तिमोथी 3 अध्याय। परंतु आत्मा स्पष्टता से यह कहता है हाँ, कि आने वाले समय में इतने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर दुष्ट विश्वास से भाग जाएंगे। दुष्ट दुष्ट यह आत्मा का उन शिक्षा, झूठे विश्व एक मिनट, दुष्ट आत्मा का शिक्षा मतलब ये दुनिया में दुष्ट आत्मा का शिक्षा भी है। हाँ, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। और एक बार हम पढ़ेंगे, ये अंतिम दिनों में, यहाँ वचन में लिखा है उसी जब ऐसी प्रकार का चीज होने वाला है, उसके पहले क्या होगा उसका सूचना है, जो झूठ वक्त आएगा। ये हवा का मतलब क्या है? झूठ। ये अंधकार को, ये उज्ज्वला को, सूर्य को, चंद्र को, उज्ज्वला को बंद कर रहा है, उज्ज्वला नहीं देने के लिए बोल रहा है। उज्ज्वला लोगों के ऊपर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जो अंधकार से आया हुआ दुष्ट आत्मा, बुरा आत्मा उसको स्वभाव को प्रकट कर रहा है, उसका प्रभाव को प्रकट करने लगे। ऐसी प्रकार का शिक्षा उनको मिला था। यहाँ देख सकता है ये वचन में, जो अंतिम दिनों में झूठ वक्त आएगा, वो एकदम नाटक करेगा। इतना ही नहीं है, वो लोगों को एकदम भ्रमाएगा। भ्रमाएगा मतलब इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मतलब उनको ये बोल के वो बोल के उनको फंसा देगा, उनको नर्क के किनारे में ले जाएगा,
परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की वचन में ले जाने वाला नहीं है। ये लोग उसका लालच को, उसका परिस्थिति को दिखा के उनको भरमाएगा। और एक बार पढ़ लीजिए पहले वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से यह कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट भरमाने वाला आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर हाँ, बस। मन लगाकर, दुष्ट आत्मा का शिक्षा को मन लगा के यीशु मसीह के पास। दुष्ट आत्मा का मतलब कौन है? शैतान। शैतान का शिक्षा कैसा रहता है हमको पता है। शैतान का शिक्षा कैसा रहता करके हवा को शिक्षा दिया था, तुम देवदूत हो जाए, तुम देव बन जाएगा। हवा को शिक्षा दिया था, तुम ये खाएगा तो वो खाएगा तो ये होगा वो होगा करके भरमाया। इतना ही नहीं, यीशु मसीह को भी भरमाया। कैसा भरमाया? पहले चीज बोला था, तुम मेरे को क्या करना है? हाँ, तो 40 दिन हो गया, उपवास में साथ है, उपवास में जी रहे हैं, इसलिए आप क्या करना है? ये पत्थर को क्या करना है? रोटी बना के खा लेने का। रोटी बना के खा लेने का, इसका मतलब जरूरत को पूरा करो। आपका जरूरत को पूरा करो। आपका जरूरत को मैं पूरा करता हूं, इसी प्रकार का चीज को शिक्षा दिया गया है यीशु मसीह को। यीशु मसीह को आजकल शिक्षण हो रहा है लोगों को, जो शारीरिक इच्छा के अनुसार होने वाला चीज को प्रचार करता है। तुमको प्रार्थना करेगा तो ये चीज हो जाएगा, वो चीज हो जाएगा, ये होगा वो होगा करके लोगों का जो शिक्षण होता है कि शारीरिक संबंध, ये पृथ्वी का संबंध के बारे में ज्यादा से ज्यादा संदेश चालू है। बरमाया भूखे में थे। हाँ, वो भूखे का जो चीज को स्वर्ग राज्य के बारे में छोड़ के पृथ्वी के बारे में बोलने का चीज में ज्यादा हो गया है। हम देख सकता है, इतना ही नहीं है, परमेश्वर के वचन में जो भूत का शिक्षण, मतलब दूसरा, यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था, दूसरा उनको शैतान ने शिक्षण दिया था। क्या शिक्षण दिया था? इसको पहले हमने देखा शारीरिक मतलब पाप करेगा तो कोई गलती नहीं, शादी के पहले पाप करेगा तो गलती नहीं, वहां जाएगा तो गलती नहीं, यहाँ गएगा तो गलती नहीं। यही वचन लेके सिखाएंगे। और कोई एक सेवक बोल रहा था, 2 शादी दावीद भी किया है, मूसा भी किया है, वो भी किया है, ये भी किया है। आप भी कर सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऐसी प्रकार का शिक्षण देने वाला। और सोलोमन को बहुत शादी हुआ है, आप भी कितना भी शादी कर सकते हैं। इतना परमेश्वर को जो राज्य को खत्म करने के लिए, पाप में फंसाने के लिए शिक्षा दिया गया व्यक्ति लोग हैं। यही शैतान का शिक्षण यीशु मसीह के पास भी वो शिक्षा लेके आया था। वो शिक्षा का नाम है जो खा लो, हवा के पास भी फल खा लो, तब पाप आने लगा। इतना ही नहीं, दूसरा यीशु मसीह के पास एक शिक्षा लेके आया था। परमेश्वर की जो वचन कहता है, आप यहाँ से कूद लो, यहाँ से कूद जाएगा तो दूत लोग आके पकड़ेंगे करके वचन में लिखा गया है ना। परमेश्वर को वचन को दिखा के ही क्या किया? वो बरमाया। आज बहुत लोग, झूठ वक्ता लोग वचन को दिखा के ही हमारा विश्वास को भरमाएगा, हमारा जो आत्मिक जीवन को भरमाएगा, हमारा भक्ति जीवन को भरमाएगा, हमारा परिस्थिति को भरमाएगा। हम परमेश्वर से दूर होने के लिए कई प्रकार का शिक्षा आजकल तैयार है, यूट्यूब में भी और कई प्रकार का जगह पे भी बहुत प्रकार का शिक्षण चालू है। इसलिए चालू है कि पाप में फंसाने के लिए, दुनिया का चीज में फंस जाने के लिए यीशु मसीह को दूसरा दिखाया था, आप खुद जाओ, दूत लोग आके पकड़ा जाएगा। एक इंसान बोल रहा था कि आपका परमेश्वर मृत्यु को भी उठा लेगा और मनुष्य को भी चंगाई देगा और मरा हुआ आदमी को भी उठाएगा। इसलिए तुम क्या करना चाहिए? आप जो पॉइजन, जो जहर पी लेने का, कुछ नहीं होगा। ऐसा करेगा तो परमेश्वर चंगाई देगा? नहीं, वो मूर्खता है। परमेश्वर का वचन को शोधन करता है, शैतान भी शोध करता है।
कोई लोग बोलते हैं तू सही सही है तो ये जहर पी लो, तुम्हारा परमेश्वर बताएगा। वो नहीं करने का, वो मूर्खता है। यहाँ वो शैतान का शिक्षण है, शैतान का स्वभाव है, जो अचानक जानबूझ के नहीं है, मालूम हो के तुम पिएगा तो परमेश्वर जरूर चंगाई देगा, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, परमेश्वर जरूर हमारा साथ रहेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर अद्भुत करने वाला ही परमेश्वर, चंगाई देने वाला ही परमेश्वर। लेकिन चंगाई के आधार विश्वास नहीं है, चंगाई के आधार जीवन नहीं है। और एक बार यीशु मसीह पृथ्वी पर था, तब ये कहानी कहा था, लाजरस और धनवान। लाजरस ने स्वर्गराज चला गया था, लाजरस ने स्वर्गराज चला गया, और धनवान नरकराज चला गया। और नरक में जाने के बाद में जो धनवान ने प्रार्थना किया था, मेरा भाई लोग ये पृथ्वी पर, उनको भेजो। किसको भेजो? मेरा जो भाई को आपने भेजो, क्योंकि वो लोग पाप में गिर गया, परमेश्वर के मालूम नहीं है, वो परमेश्वर को जानता नहीं, इसलिए आप क्या करना है, भेजो। जो मरा हुआ इंसान, ये जो मरा हुआ लाजरस जाके बताएगा तो उद्धार पालेंगे, लाजरस आके जाके उद्धार पालेंगे, ऐसा बोला। परमेश्वर ने कहा था, अरे अब्राहम ने कहा था, तुम वहां बोलने वाला बहुत है, वहां शिक्षा देने वाला बहुत है, वहां का बात नहीं सुनने का तो एक मनुष्य मृत्यु से बाहर आके जिंदा होके बोलेगा तो भी नहीं सुनेंगे। इसका मतलब क्या है? धनवान क्या पे आधार किया था? ये जाके ये मरा हुआ आदमी जाके उठ के तो चमत्कार हो गए, तो अद्भुत काम हो गए, तो उनका बात लोग सुनेंगे। ये गलती है। यीशु मसीह ने कहा था ये गलत, ये चमत्कार के आधार से नहीं है। वहां जितना लोग है उनका मुंह से जो वचन सुना नहीं देता है, वो वचन को आधार नहीं है, तो वो मरा हुआ इंसान आके बोलेगा तो भी वो सुनेगा नहीं। इसका मतलब वचन के आधार से ही जीवन बरमाए हुआ वचन चमत्कार के ऊपर लोगों को लेके जाके परमेश्वर का भक्ति में, प्रार्थना में ले जाने वाला नहीं है। खुद का जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। आज शैतान लोगों को फंसा रहा है, जो भूत का संदेश, भूत का जो वक्ता लोग आके परमेश्वर से दूर खींचा गया चीज बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। क्यों अद्भुत काम? परमेश्वर के पास आने के लिए। क्यों अद्भुत काम? हम सुधर जाने के लिए। क्यों अद्भुत काम? परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए। कभी कभी हम सुनते नहीं, कभी कभी हम बात सुनते नहीं, इसलिए परमेश्वर कुछ चीज को लेके आता है ताकि हम और पास जाएंगे, और भक्ति में जाएंगे, और प्रार्थना में जाएंगे, और विश्वास में बढ़ेंगे। ये चीज के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, बिना परमेश्वर से आपको कुछ भी नहीं होगा। जो कोई परमेश्वर को प्यार करेगा उनको भला के लिए होगा, अच्छे के लिए होगा, कभी बुरा नहीं होगा। जो कुछ वो दुख है, वो कड़वा है, मधुर है, मुश्किल है, संकट है, सारे चीज आपका भलाई के लिए होगा। क्यों? आप ज्यादा परमेश्वर को प्यार करता है, इसके वजह से ही। और तीसरा हम देख सकता है, यीशु मसीह के पास क्या आया था? झूठ का। उन्होंने बोला था ये पूरा पृथ्वी को आपको दे देता, जितना दुनिया है सब दुनिया आपको दे देता। आप क्या करना है? मेरे को नमस्कार करना है, मेरे को नमस्कार करना है, पूजा करना है। जब तुम मेरे को पूजा करेगा तो ये पूरा पृथ्वी तुम्हारा है। उनको पता नहीं शैतान को ये पृथ्वी परमेश्वर के है क्या? क्योंकि शैतान मनुष्य के रूप में रहने वाला यीशु मसीह को भी शोध करने के लिए चाहता है। आज तुमको भी, मेरे को भी शैतान ऐसी प्रकार का जो लालच दिखा के फंसाना चाहता है। आज संदेश भी लोग, तुम परमेश्वर को और ज्यादा प्रार्थना करेगा। जो आज यूट्यूब में लोग भविष्य वक्तव्य करने वाला, आज देखो तुम्हारा गाड़ी आएगा, आज देखो तुमको फ्लाइट आएगा, आज देखो तुम वीजा आएगा, आज देखो तुम वहां जाएगा, यहाँ जाएगा, ये होगा, वो होगा करके जो बरमा हुआ वचन बहुत जगह पे है। लोगों को फंसा हुआ, जो एकदम फंसा हुआ कहानी बोलने का और हमारा कान को अच्छा लगा संदेश ही सुनने का चाहता है। कोई लोग ज्यादा से ज्यादा लोग डांटने का संदेश है तो स्वीकार नहीं करते हैं, और जो सही वचन को इसीलिए क्यों प्रकटीकरण ज्यादा मनन नहीं कर पाता है? प्रकटीकरण डर लगता है, प्रकटीकरण में गाली रहता है, प्रकटीकरण में परमेश्वर का क्रोध रहता है,
प्रकटीकरण में हमारा जिंदगी रहता है। प्रकटीकरण में परमेश्वर का जो क्रोध ये लोगों के ऊपर, दुनिया के ऊपर कैसा है उसका चीज में बहुत रहता है। हर दिन हम पढ़ेंगे तो बहुत कुछ हो जाता है, पाप छोड़ना पड़ता है, भक्ति में बढ़ना पड़ता है। ये चीज को डर के शैतान ने लोगों का आंखों के बंद किया। हम देख सकते हैं जो पहले अध्याय, जो वही प्रकटीकरण पहले अध्याय 3 वचन पढ़ लीजिए, क्या लिखा गया है प्रकटीकरण के बाद में। परमेश्वर जो पवित्र आत्मा ने लिखा गया था, पढ़ लीजिए। संदेशाचा शब्द वाचून दाखविणारा, 3 ते वचन। ऐकणारे व हा हाँ। या संदेशाचे शब्द वाचून दाखविणारा, ते ऐकणारे व त्यात लिहिलेल्या गोष्टी पाळणारे हे धन्य, कारण समय जवळ आला आहे. जब समय निकट है, जब समय बहुत निकट है, उसी समय में ज्यादा से ज्यादा वचन बनने का चीज है प्रकटीकरण। जो कोई भविष्य के वचन के बारे में जो कोई सुनता है, मनन करता है, प्रचार करता है, उनको ही आशीष, क्योंकि होने वाला चीज को लोग जान के डर जाएंगे और वो पृथ्वी के ऊपर ये ध्यान नहीं लगाएंगे, स्वर्ग के ऊपर ध्यान लगाएंगे। होने वाला चीज के बारे में सोचने के बाद में हमको लगता है कि परमेश्वर के लिए कुछ करना है, आत्मा को जीतना है, इसी प्रकार का जीवन होना चाहिए करके लोगों का मन तड़पता है, इसलिए वो आशीष पाएगा। वही परमेश्वर के लिए जिएगा, ये वचन कहता है। यहाँ हम देखा 2 प्रकार का चीज, बहुत खतरनाक चीज हमने देखा था कि प्रकटीकरण में हमने देखा ये जो जगह पे उसका जो जीवन में, हाँ, ये जो पृथ्वी का वो हवा निकलता है, वो हवा का वजह से सत्य प्रकाश खत्म हो जाता है, प्रकाश बंद हो जाता है। बंद होने के बाद में ये जीवी आपके हर एक मनुष्य को काटता है। कितना दिन रहता पता है? यहाँ वचन में क्लियर लिखा है कितना दिन था? 5 महीना। कितना महीना? 5 महीना। पढ़ लीजिए। और कोई भी पढ़ लीजिए 9 अध्याय, 9 अध्याय। त्यांना जीवे मारण्याचे त्याच्याकडे सोपविले नव्हते, तर फक्त 5 महिने पीडा देण्याचे सोपविले होते. त्यापासून होणारी पीडा विंशू माणसाला नांगी मारतो, तेव्हा त्याला होणाऱ्या पीडेसारखी होती. हाँ, ठीक है। यहाँ हम देख सकता है उनको समय दिया गया है सिर्फ 5 महीना के लिए। ये 5 महीना में खतरनाक चीज होता है कि ये 5 महीने में लोग तकलीफ उठाता है, मृत्यु के लिए ढूंढते हैं, सुसाइड करने के लिए ढूंढते हैं, मृत्यु उनको दूर हो जाता है। अयो, ये तकलीफ को मैं सहन नहीं करता। देखो, जो बछड़ा एक बार हमको लग गया तो बिछुआ, जो बिच्छू लग जाएगा तो क्या होगा? ये बिच्छू लग गया तो कम से कम 2-3 दिन बहुत खतरनाक दुख लगता है। ये दुख 5 महीना रहता है। क्लियर लिखा है कितना महीना होने वाला है। 5 महीना खतरनाक का बिच्छू का तकलीफ होगा। बिच्छू का तकलीफ 5 महीने रहेगा तो मनुष्य कितना तड़पेगा, बहुत तड़पेगा, प्राण होने तक। लोग मृत्यु को देख के मैं सुसाइड करने के लिए जाकर लोग क्या करेगा? पस्सी लगा के मैं मर जाता हूँ करके पस्सी लगाने के लिए जाएगा तो वो पस्सी भी कुछ नहीं होगा, टूट जाएगा। इतना ही नहीं है, मैं पस्सी लगा जाता हूँ और एक इंसान है, मैं जो तलवार से मार देता हूँ करके तलवार भी अंदर जाएगा, रबर के जैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो रेलगाड़ी के नीचे में मर जाता हूँ करके उन्हें नीचे में जाएगा तो उसको मृत्यु नहीं होगा, लेकिन तड़पेगा, मृत्यु के लिए तड़पेगा, जीने के लिए आशा नहीं होगा। ऐसा दिन होने वाला है, ऐसा दिन आने वाला है। ऐसा भयंकर दिन होने के पहले हम सुधारने के लिए परमेश्वर ये वचन कहता है, बहुत भयंकर दिन होने वाला। हमने देखा था ये जो एक विषय के बारे में मनन करते होते हैं तो इतना खतरनाक चीज होने वाला है, इतना भयंकर दिन होने वाला है। उसी जमान में जो अंधकार का जो ऐसी प्रकार का शिक्षा होती है कि लोगों को जो फंसाने के लिए पाप में और अंधकार में ले जाने के लिए। और 3 वचन पढ़ लीजिए और एक बार, यहाँ लिखा गया है। हाँ, 3 वचन। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिटिया निकली। टिटिया निकली? क्या निकली? टिटिया कहाँ से? ये टिटिया कहाँ से होता है?
ये टिड्डियां क्यों क्यों करने के लिए होता है? धुएं जमीन के लिए नहीं, ये पेड़ के लिए नहीं, तो कुछ भी एक खेत के लिए, खेत को खत्म करने के लिए, फल को खत्म करने के लिए, जमीन में जो भी चीज फल आता है उसको। यहाँ हम देख सकते हैं ये कीड़िया के वजह से पुराना नियम में जो फरों का जो जगह में सबको मार डाल दिया, सबको खत्म कर दिया, सबका जो उसका चीज को खत्म करने लगा, परमेश्वर का श्रापित आया। ये कीड़िया मनुष्य को खत्म नहीं करेगा। यहाँ लिखा गया है जो पृथ्वी के ऊपर जो भी ग्रास है, जो भी पेड़ है, जो भी जो पेड़ का चीज है उसको कुछ नहीं करने का, लेकिन मनुष्य को तुम दुख देने का, मनुष्य को तुमको तकलीफ देने का, मनुष्य को तुम जितना तकलीफ दे सकता है दे दो 5 महीना, लेकिन मृत्यु नहीं दिया। क्यों? वहां भी क्लियर लिखा है किसको मृत्यु नहीं दिया और किसको मृत्यु देना है, उसके बारे में भी एकदम उन्होंने ये जगह पे लिखा गया है। 5वां वचन पढ़ लीजिए। यांना दिवे मारण्याचे त्याच्याकडे सफविले नव्हते, तर फक्त 5 महिने पीडा देण्याचे सफविले होते. त्यापासून होणारी पीडा विंचू माणसाला नांगी मारतो, तेव्हा त्याला होणाऱ्या पीडेसारखी होती. बस यहाँ हम देख सकते हैं उनको बहुत कुछ तकलीफ हुआ, बहुत तकलीफ हुआ। जो होने वाला चीज को देख के लोगों को इतना भयंकर परिस्थिति होता है। पहली चीज लोगों को जो 5वां जो शब्द है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी पर जो नर्क को देखने के लिए जो बीमारी होता है, भयंकर बीमारी, लोग तड़पेंगे, लोग रोएंगे, लोग बहुत कुछ नरक में जितना तकलीफ उठाते हैं वहां ये पृथ्वी पर अनुभव करेंगे। इतना भयंकर दिन होता है ये सारे चीज के लिए, लेकिन मृत्यु उनको हटाएगा नहीं। जैसा हम देख सकते हैं आयुब का जीवन में सब कुछ तकलीफ उठाया, सब कुछ खोद लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन मृत्यु को सौंपा जाएगा नहीं, क्योंकि योग का जो परीक्षा हुआ है, यहाँ भी लोगों को कुछ चीज हो गया। परमेश्वर चाहता है कुछ सिखाने के लिए। और देख सकता है, और पढ़ लीजिए, आगे पढ़ लीजिए। और एक प्रकार का और दूसरा भाग हम देख सकते हैं 6 13 वचन, 13 वचन पढ़ लीजिए। नंतर 6व्या देवदूताने कर्णा वाजविला. हाँ नंतर 6व्या देवदूताने कर्णा वाजविला, तेव्हा देवासमोरील सुवर्ण देवीच्या 4 शिंगामधून झालेली एक वाणी मी ऐकली. कर्णा असलेल्या 6व्या देवदूताला ती म्हणाली, फरात महानदीवर बांधून ठेवलेले 4 देवदूत मकडे कर. आगे ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ एक प्रकार का और एक दुष्काल और एक भयंकर काल लोगों के ऊपर परमेश्वर का दंड आने लगा। ये दंड आने के बाद में ये बाग में देख सकता है जो कोई जो 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 ये जगह पे जो सील डाला जाता है, जो सील डाला जाता है, उन लोगों को छोड़ दो। और कम से कम मेरे हिसाब से 2 लाख लोग 20 कोटी कितना लिखा है? 20 कोटी होती. घड धरण्याची संख्या 20 कोटी होती. ती त्यांची संख्या मी ऐकली. हाँ, तो इतना संख्या होता है, लेकिन उसमें कुछ लोगों को, नियुक्त हुआ लोगों को ही परमेश्वर वहां छोड़ देगा, क्योंकि वो लोग इज़राइल लोग हैं, वो लोग इज़राइल लोग हैं। वो इज़राइल लोगों को, तो वो लोगों को छोड़ने के लिए परमेश्वर चाहता है, और उन लोगों को कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी लोगों को मार डालने के लिए अधिकार देता है। ये जो समुद्र से निकलता है ये चीज, नीचे हम देख सकते हैं स्क्रीन में, ऊपर का चीज हमने देखा। दूसरा चीज ये सिंह के जैसा, और इसके ऊपर एक इंसान रहेगा, और जो जो आग रहेगा, और पीछे श्राप का सेफ्टी रहेगा। श्राप का पीछे, श्राप से मनुष्य को, इतना लोगों को सेफ्टी से श्राप मार देगा, मतलब पीछे से लोगों को डाल देगा, आगे से आग से खत्म कर देगा, और क्रोध और तलवार से खत्म कर देगा,
लोगों को इतना भयंकर परिस्थिति में लोगों को मार डालेगा तो वो गली कितना आवाज उठाएगा, कितना तकलीफ उठाएगा, कितना भयंकर परिस्थिति होगा। वो लोगों को शैतान ने आके इतना तकलीफ उठाने के बाद में शैतान वो संदेश देता है कि उन लोगों को फंसाने के लिए, उन लोगों को खत्म करने के लिए, उन लोगों को कैसा भी इस चीज से बाहर निकलने के लिए वो शैतान क्या करता है, वो चीज भी हम देख सकते हैं। हाँ, पढ़ लीजिए कोई भी 19 वचन पढ़ लीजिए। कारण त्या घड्याची शक्ती त्याच्या तोंडात व शेपटात आहे. त्याची शेपटे सापासारखी असून त्यांनाही डकी आहेत आणि त्यांनी ते उपद्रव करीतात. हाँ, ये उपद्रवित करतात, मतलब वो लोग तकलीफ देता है, वो लोग मुसीबत करता है। ये ऐसा चीज में लोगों को इसी प्रकार का चीज होने वाला कि सेफ्टी से, श्राप से, ये सारे तकलीफ उठाने के बाद में लोगों को परमेश्वर के ऊपर भरोसा खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया और परमेश्वर को छोड़ के वो लोग क्या करने लगे। 19, 20, 21 वचन में लिखा गया है वो लोग पाप में फंसने लगे। कितना, और 20 वचन से पढ़ लीजिए क्या क्या करने लगे वो लोग, लिखा गया है, पढ़ लीजिए। ज्या पिढ्यामुळे जे जीवे मारले गेले नाहीत अशा बाकीच्या माणसांनी आपल्या हातच्या कृत्याविषयी पश्चाताप केला नाही, म्हणजे भूताची व ज्यास पाहता ऐकता व चालता येत नाही अशा सोन्याच्या, रुपयाच्या, पितळ्याच्या, दगडाच्या व लाकडाच्या मूर्तीची पूजा करणे त्यांनी सोडिले नाही आणि त्यांनी केलेल्या नरहत्या, चेटके, जारकर्म व चर्या ह्याबद्दल पश्चाताप केला नाही. तो इतना भी कष्ट, इतना भी तकलीफ उठाने के बाद में, इतना भी लोगों को ये करने के बाद में भी उसमें कुछ लोगों को चुना होने के बाद में, 4 वचन पढ़ लीजिए, उसमें कुछ लोगों को चुना होने के बाद में भी, पढ़ लीजिए 4 वचन क्या लिखा है। त्यास असे सांगण्यात आले की पृथ्वीवरील गवताला कोणताही हिरवळला व कोणत्याही झाडाला उपद्रव करू नये, तर ज्या माणसाच्या कपाळावर देवाचा शिक्का नाही त्यांना मात्र उपद्रव करावा. सिक्का नहीं, जो सिक्का है उनको छोड़ देने का लिखा गया है, जो सिक्का है उनको मार डाल देने के लिए लिखा गया है। जो सिक्का मतलब ये लोग दो करोड़ लोग, ये 2 करोड़ में लोग में, इसका कमेंट्री में कुछ चीज में मैंने देखा 2 लाख लोगों को ही वहां, वो भी कौन है, इजराइल लोग, यूद लोगों को बचाता हूं करके परमेश्वर ने पुराना नियम में भी वादा दिया और नया नियम में भी वादा दिया। उन लोगों के लिए परमेश्वर मार भी गए, उसमें कुछ लोग चिक्का हुआ, जो मुद्र हुआ, जो लोग और भी परमेश्वर के विरोध में, और परमेश्वर के विरोध में नहीं जीने वाला, परमेश्वर की इच्छा के जीने वाला, परमेश्वर के साथ जीने वाला, परमेश्वर के रिश्ता के लिए, उसके बाद में यही परमेश्वर को जानने के बाद में उसका जीवन पवित्र होके, भक्ति में होके, प्रार्थना में होके, मजबूत होके हुआ, लोगों को छोड़ दिया तकलीफ को। फिर बाद में आखिरी में हम देख सकता है वो लोग इतना तकलीफ, इतना कष्ट, इतना दुष्काल होने के बाद में भी उनका जीवन में मन नहीं फिरा। वो शैतान का बात सुनने लगे, कहाँ है परमेश्वर तुम्हारा, इतना तकलीफ उठाता है, कौन नहीं परमेश्वर करके शैतान ने शिक्षा देने के बाद में वो शिक्षा को वो लोग स्वीकार करके मूर्ति पूजा करने लगे, उसको नमस्कार करने लगे। जो पेड़ मिलता है, जो सोना मिलता है, जो मिलता है वो मिलता है, सबको जो मनुष्य से बना हुआ जो चीज को बारे में वो लोग ने क्या किया था, नमस्कार करने लगे। इतना नहीं है, लोगों को हत्या करने लगे, खून करने लगे, मार डालने लगे, बहुत भयंकर परिस्थिति। गली गली में पूजा, गली गली में जो मृत्यु का आवाज, एक प्रकार का शैतान आके लोगों को मार डाल रहे, और दूसरा मनुष्य के ऊपर मार डाल रहा है। इतना पूजा वो एक प्रकार का साइज में चला गया, परमेश्वर के दूर में परमेश्वर की कृपा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद में क्या हुआ, व्यभिचार, जो कोई व्यभिचार करता वो धनवान होता है, जो व्यभिचार करता वो ही जिएगा, उसका लाइफ स्टाइल हो गया, यहाँ लिखा गया है उनका लाइफ स्टाइल, वो नहीं करेगा तो वो जिएगा भी नहीं, जिएगा भी नहीं। वो बढ़ते आया, उसका पश्चाताप बिल्कुल नहीं है, पश्चाताप उनका जीवन में कुछ भी नहीं हुआ। मेरा प्रियो, आज वचन सुनने वाला,
आप लोगों को परमेश्वर और एक बार बोलना चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की महिमा के अनुसार, परमेश्वर के जो वादा के अनुसार, जो हम जीने के लिए पृथ्वी पर जितना भी जीता है, परमेश्वर को महिमा करके, परमेश्वर को महिमा करने के लिए एक बहुत बड़ा संगति और बहुत बड़ा जागृत होने के लिए परमेश्वर हमको तुमको इस्तेमाल करना चाहता है। यहाँ कोई पास्टर नहीं, कोई वक्ता नहीं, कोई भी बोलने वाला नहीं। इसलिए झूठ वक्ता आ गया, शैतान पाताल लोक के आके प्रचार करने लगे। इतना भयंकर प्रचार था। जो कोई खाना खाना है तो खाना का तकलीफ, जीना का तकलीफ, पूजा करना है वो भी मूर्ति पूजा तभी जिएगा, व्यभिचार करना है तभी जिएगा, तुम किसको भी मार डालना है तभी जिएगा, तुम इतना भयंकर पाप करना है तभी तुम जिएगा। ऐसा परिस्थिति होने वाला है। वो चीज से हम बचना चाहिए, तो वो चीज से हम बचना चाहिए तो परमेश्वर के चरणों में। शायद परमेश्वर के दूसरा आगमन कब आता पता नहीं, कौन सा परिस्थिति में आता पता नहीं, कब होने वाला पता नहीं। आज परमेश्वर हो जाएगा तो कल से 5 महीना चालू हो जाता है। आज रात परमेश्वर का जो आगमन आज रात हो जाएगा तो दुष्काल कल से चालू हो जाएगा। कितना भयंकर डेंजर परिस्थिति। मेरे प्रियो, आप तैयार है परमेश्वर के चरणों में? आप तैयार है परमेश्वर को महिमा करना? परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती सुसमाचार 24 में 21 में, वहां पूरा क्लियर लिखा गया है, 2 लोग काट पे सोता था, एक उड़ गया एक छोड़ा गया। और चक्की काम करते थे, एक उड़ गया एक चढ़ गया। खेत काम करते थे, एक छोड़ दिया एक उड़ गया। और हाँ, एक एक इंसान, ये हम देख सकते हैं। इसका मतलब है सोने का टाइम में भी भक्ति में सोने का। कोई कोई लोगों को आता है रात्रि में गंदा स्वप्न आ गया। क्यों गंदा स्वप्न आता है? दिन भर वही सोचता होगा, इसलिए दिन भर पिक्चर देखता है। रात में तुम सपना में तुम हीरो बन जाता है, हीरोइन बन जाता है, नहीं तो कोई कोई आ जाता है। क्यों? कारण क्या था? हमारा रात में भी परमेश्वर का महिमा करते रहना, हमारा सपना में भी परमेश्वर को महिमा करने का जैसा होना, हमारा सोच विचार भी परमेश्वर के साथ जो रिश्ता रखता है, वो सपना में भी परमेश्वर आके बात करेगा और बातचीत होगा और बलवंत होगा और साथ में रहेगा। मेरा प्रियो, आज हमारा जीवन कैसा है? होने वाला दिन भयंकर होता है, उससे हम बचना चाहिए। तो ये प्रकटीकरण में मनन करने के टाइम में और हम परमेश्वर के साथ रिश्ता और नजीक होना चाहिए। प्रभु आपके साथ रिश्ता नजीक होने के लिए सहायता मदद दीजिए। ऐसे प्रकार का जो भयंकर जो चीज को हम फंसना नहीं चाहिए, झूठ वक्ता से फंसना नहीं चाहिए। प्रभु जी, अंतिम दिनों में आपके साथ और रिश्ता बढ़ने के लिए सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद करते हैं। ऐसा करके हम प्रार्थना करेंगे, आंखों के बंद करके परमेश्वर के चरणों में आएंगे। कोई भी एक जन पढ़ ले, प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब के लिए। प्रभु जी, भयंकर दुष्काल में हमने देखा, खतरनाक दुष्काल, वो जो उसका जो जीवी को देखने से डर लगता है। जो वीडियो में हमने देखा था, भयंकर परिस्थिति, भयंकर, उस चीज से हम बचना है। इनको प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करू। आकाश आणि पृथ्वी निर्माण करणारा परमेश्वर पिता, पर एक वेळा आमचा चरण तले आवते पिता परमेश्वर पिता, परकर पिता परमेश्वर ता पवित्रता द्वारा पिता परमेश्वर आज पिता जो पिता है पिता प्रगटीकरण पर जो विषय पिता परमेश्वर हम जीत गए परमेश्वर तिया को तमताना लाखों धन्यवाद आपके पिता होकर पिता परमेश्वर अंतिम दिन के अंदर पिता परमेश्वर ओ पिता जो पिता परमेश्वर ता निवडीना लोक तू विचित नाही त्या पासळी जे पीड होणारी पीडा आहे पिता त्यामध्ये एक पीडा मुसिका दे पिता परमेश्वर पिता खरोखर पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर के पीड़ा हो पिता के कीड़ा समान हो पिता परमेश्वर, परंतु ज्यावेळेस तो सावध था पिता परमेश्वर के विश्वास पिता त्रास होणार पिता वचन म्हणत गए पिता, परंतु पिता प्रार्थना करते विनंती करते ता घडी अरज करते पिता ओ पिता परमेश्वर जो दुनियादारी ने जीवन है पिता, या दुनियादारी ने जीवन ने अंदर पिता जो पाप हो पिता परमेश्वर, जो पिता अंधकार में ताकत ने अंदर पीड़ा के पिता एक पापों में हम भटकी जाते पिता, हम प्रार्थना करते आज हम तो पश्चाताप कोई न करते समय पे पिता परमेश्वर आज फिर एक बार पिता प्रगटीकरण हम काम सिखाए न करते मिले पिता परमेश्वर पिता तेनी
છતાં અવાજ નહીં આવે. अंदर मजबूत पवित्र होते ताचन्य प्रार्थना को आज देखा हम जितने हो पिता परमेश्वर के आमा को होते पिता और समय पिता कीमती हो या कीमती समय ने अंदर पिता हम विश्वास ने अंदर मजबूत रहते होते ता विश्वास में आगाड़ी बातें रहो ताचन्य प्रार्थना को होते फिर एक बार पिता हम आखा जीवन आगाड़ी वेड़ समय और जो वचन अपना दासो जीवन पिता ता पवित्र आत्मा प्रार्थना प्रभु इस द्वारा मांगते हैं आमीन. આમેન. સલામ.